Welcome everyone to Voice of Kinnor and you are listening to Vipin. Every day we bring you conversation with a special guest and today we have one such special guest with us. Joining us is Dr. Neeru Atri, a seasoned psychologist, life coach and author with over 15 years of experience in counseling, especially with youth. She holds a PhD in psychology, focusing on adjustment, self-esteem and resilience in young minds. Dr. Atri is a part of NCRT Counseling Services and the Manodarpan initiative by the Ministry of Education. She also the founder of the mental health startup Akar and serves as vice president in the Women's Indian Chambers of Commerce and Industry. Her book, Deciphering Young Minds, explore the emotional world of teenagers, a theme we will be delivering into today. Ma'am, it's a pleasure to have you on our show. I want to firstly ask you, you have been working with youth for over 15 years. What are the most common emotional challenges you see in teenagers today? Okay. So, first of all, thank you so much, Vipin, for such a good and elaborate introduction. Yeah. So, if we talk about youth, these days, lot of challenges they are facing. If I mention it point-wise, like low self-esteem, anxiety, depression, they are into drugs and substance abuse, then handling peer pressure, social media pressures, right? How to navigate that social media pressure. Then again, teenagers, because puberty is starting, so a lot of physical changes are there, a lot of emotional changes are there. They are not able to handle it, right? And then it leads to their image conflicts, their body image conflicts. So बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर यूथ की आज हम बात करते हैं, फैमिली एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, अपने करियर का वो पीक टाइम है, उस टाइम में वो प्रेशर्स अलग हैं. सो अगर यूथ की मैं कहूँ तो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकली बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर रहे हैं. यस. Thank you so much. Your book, Deciphering Young Minds, has touched many hearts. What inspired you to write it, and what message do you hope it leaves with readers? What I feel NCERT and this initiative of Manodarpan by Ministry of Education has impacted a lot. अगर कोविड की हम बात करते हैं तो कोविड के टाइम में क्योंकि जो सिचुएशंस आई थी, इतना लोगों पैनिक हो गए, है ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज अचानक से बहुत बढ़ गए यूथ में, उनके पेरेंट्स में या टीचर्स में भी, ऐसे करके. तो बहुत सारी जैसे काउंसलिंग सर्विसेज ये सब हुई हैं, जो इनफैक्ट वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. सबने फ्री सर्विसेज दिया है उसमें. तो काफ़ी हद तक जो है हम उसको एड्रेस कर पाए. बहुत लोग कॉल करते थे. सो आई थिंक कोविड के टाइम से ये स्टार्ट हुआ था और उस टाइम में बहुत अमेजिंग इसके रिजल्ट्स आए हैं. बहुत लोगों को एक्चुअली हम रीच आउट कर पाए, बहुत लोग हमें रीच आउट कर पाए और बहुत लोगों को हेल्प मिली. और जहाँ तक अब स्कूल्स की हम बात करते हैं, स्कूल्स में अब क्या हो गया है, क्योंकि दीज आर government organizations, and when they plan something, so it is in a very structured way, है ना. It is again initiated in a very structured and elaborate manner, है ना. So schools में अब क्या हो गया है कि इस वजह से मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ गया है. स्कूल्स अब सीरियसली ले रहे हैं मेंटल हेल्थ को, मतलब वो प्रायोरिटी में आ गया जो पहले बहुत पीछे बैक स्टेप पे कहीं पर था. मेंटल हेल्थ को कोई इतना इंपॉर्टेंस कभी मिलता ही नहीं था, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, है ना. सो अब जैसे अगेन ये वाला जैसे मनोदर्पण में भी है कि टॉक्स है, उनके लाइव सेशंस हैं, और स्कूल्स में जैसे सर्वेज रिसर्च के लिए हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, काउंसलिंग सर्विसेज तो हैं ही हैं. सो बहुत सारे स्कूल्स ने अब जो है उस वे में स्टार्ट कर दिया है चीज़ों को लेना. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे दैट इट हैज़ इम्पैक्टेड इन अ वेरी पॉजिटिव वे. अगर बात की जाए, मैंने भी अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया. अगर पहले के टाइम की स्कूल्स की बात की जाए तो काफी डिफरेंट तरीके से मेंटल हेल्थ को देखा भी जाता था. Right. एक छोटा मोटा इश्यू से माना जाता, लेकिन आज के टाइम में काफी अच्छी तरीके से इसका बच्चों को खासकर इसका काफी बेनिफिट भी मिल रहा है. बिल्कुल. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एज अ फाउंडर ऑफ आकार, व्हाट इज द मिशन ऑफ योर स्टार्टअप एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल काउंसलिंग स्टार्टअप्स? Okay, see, mission of Akar is to reach out to everyone who needs help emotionally and psychologically. जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए. सो हमको ये इम्पोर्टेंस बहुत स्ट्रांगली पता है कि मेंटल हेल्थ अगर अफेक्ट हो जाती है किसी बच्चे की, सो वो किस तरह उसको इम्पैक्ट करता है ना, किसी की भी, मतलब. तो उसका वो फिज़िकल ग्रोथ, उसका मेंटल ग्रोथ, उसका प्रोफेशनल ग्रोथ, उसका करियर, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं. और बच्चे जो हैं बहुत बार आप देखते हैं कि ड्रग्स में चले जाएंगे, सब्सटेंस अब्यूज़, एंटी सोशल एक्टिविटीज़. सो ये सारी चीज़ें हमें लगता था कि
कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए कि एटलीस्ट हम अपने लेवल पे भी उनको रीच आउट कर सकें, है ना। और जहाँ तक आपने कहा कि डिफरेंट कैसे है, ठीक है, डिफरेंट थोड़ा सा इस तरीके से है कि स्टूडेंट्स को हम क्या करते हैं कि काउंसलिंग सर्विसेज तो हैं ही हैं, बट उनका साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं, उनका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी करते हैं। अब साइकोमेट्रिक असेसमेंट से क्या होता है कि आपको बच्चे की स्किल्स पता चल जाती हैं, है ना, क्योंकि यूथ कंफ्यूज है, बहुत सारा यूथ कंफ्यूज है, उनको पता नहीं है लाइफ में करना क्या है, करियर कैसे चूज़ करना है, लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, एंड नोबडी इज़ देयर टू गाइड देम इन दैट प्रोफेशनल मैनर, है ना। सो अब क्या हो गया कि जब टेस्टिंग पार्ट होगा तो हमें बच्चे की स्किल्स पता है, उसको भी पता है ओके दीज आर माय एसेट्स, ये मेरी स्किल्स हैं, ये मेरे अंदर चीज़ें हैं, ये मेरे लिए अच्छी डायरेक्शंस हैं। तो प्लस और भी जो चीज़ें हैं उस पर भी हेल्प हो जाती है। फिर उसके बेसिस पे एक और चीज़ जो डिफरेंट है वो क्या है कि कोई प्रॉब्लम बच्चा लेके आता है, कोई मेंटल हेल्थ इशू है उसको, सो उसका रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है कि ये निकल के कहाँ से आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ से निकल के आ रही है। सुपरफिशियल नहीं करते हैं, पहले बेस में जाते हैं कि कहते हैं ना जड़ से ही उस चीज़ को उखाड़ दिया जाए, जड़ कहाँ है वहीं पर स्टार्ट किया जाए ट्रीटमेंट। सो वो उसके बेस पे एनालिसिस करके देन वी प्रोवाइड देम थेरेपिस्ट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। So then it makes it a comprehensive help actually. और मुझे लगता है कि एक किसी बच्चे का जीवन सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। Right, right. You wearing many hats, अगर बात की जाए psychologist, coach, author, leader and also the wife of a serving soldier. How has the army life influenced your perspective on mental strength and emotional adaptability? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है विपिन जी। देखिए एक ना आर्मी वाइफ का जो रोल है वो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, है ना, कि हस्बैंड अपनी पोस्ट पे हैं, अपनी फील्ड में हैं, जहाँ पर भी वो पोस्टेड हैं। सो लेडी के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, है ना, बच्चों को देखना है, उनकी इमोशनल नीड्स को देखना है, स्कूल्स चेंज हो रहे हैं। जब स्कूल चेंज हो रहे हैं तो बच्चे की कितनी एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं, हर 1 साल 2 साल में आप स्कूल चेंज कर रहे हैं, उनके नए फ्रेंड्स बनने, नई जगह में एडजस्ट होना, सेम अपने लिए भी आपकी जिन लोगों से बॉन्डिंग बनी, कनेक्शंस बने, दोस्ती बनी, आपकी छूट गई। फिर नई जगह में सब कुछ एक्सप्लोर नया कर रहे हैं, राइट, फिर नए दोस्त बना रहे हैं, नया सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं। पीछे आप हस्बैंड के पेरेंट्स को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनकी फैमिली और जो है ना उनको भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। एक पहलू तो ये हुआ कि अरे इतना कुछ हैंडल करना पड़ता है अकेले, है ना, राइट, बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, क्योंकि अगर आप एक कहते हैं ना फौजी तभी 100% फोकस के साथ काम करेगा जब उसको पता है कि मेरे पीछे देखने वाला कोई है ना, वो रिलैक्स रहेगा तो वो 100% दे पाएगा। तो पीछे देखने वाला यही है ना कि फैमिली। तो ये एक पहलू हो गया कि अरे बहुत कुछ अकेले सहना पड़ता है, बहुत कुछ है। फिर हस्बैंड का भी सेफ्टी का भी हर वक्त डर है मन में, वो भी हैंडल करना है, राइट। लेकिन इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, सिक्के का जो दूसरा पहलू है, वो क्या है कि ये आपको बहुत स्ट्रांग बना देता है, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है, आपको सेल्फ बिलीफ आपका एकदम इंक्रीज हो जाता है, आपके अंदर कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है कि ओके आई कैन हैंडल एवरीथिंग। इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। फील नॉलेज इज पावर, लाइक सब कहते हैं, बट आई फील कॉन्फिडेंस इज पावर। कॉन्फिडेंस इज द रियल पावर। क्योंकि नॉलेज से कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस से आपको पावर आया, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और आपको आपकी मैनेजमेंट स्किल्स आपकी वो अच्छी हो जाती हैं। आप इमोशनली यू नो हाउ टू एडजस्ट इन अ न्यू एनवायरनमेंट, एडेप्टेबिलिटी कैसे करनी है आपको वो आ जाती है, बिकॉज आप खुद सीखोगे तभी आप बच्चों को भी हेल्प करोगे अपने, राइट। तो एज अ फैमिली यू ग्रो टुगेदर, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, ये सब हैंडल करने का। सो जहाँ तक मैं अपनी बात कर रही हूँ कि इतना कुछ मैं क्यों कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आर्मी लाइफ ने मुझे बहुत हेल्प किया है टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल, टू मेक मी मोर पावरफुल एज एन इंडिविजुअल। सो आई थिंक इसीलिए ये सब चीज़ें मुश्किल कुछ भी नहीं है ना। आपको सिर्फ वो स्किल्स आनी बिल्ड करनी होती है कि सब कुछ कैसे एक साथ करना है। सो आई थिंक आर्मी में ये हम सीख ही लेते हैं, है ना, मल्टीटास्किंग सीख लेते हैं और सारा कुछ कैसे हैंडल करना वो सीख लेते हैं। सो इट इन्फ्लुएंस्ड मी इन अ ग्रेट मैनर। अगर बात की जाए, हाँ, अगर इवन मैंने भी कई बार ये चीज़ नोटिस करी है बच्चों के बारे में, खासकर हर 3 साल हर 2 साल में फ्रेंड्स बदल रहे हैं, एक नया एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो कई बार बच्चों को एडजस्ट होने में कहीं ना कहीं टाइम जरूर लग जाता है, राइट। इसी के साथ अगर मैम बात की जाए सोल्जर्स की फैमिलीज की, तो एक यूनिक इमोशनल चैलेंज वो हमेशा फेस करते हैं। हाउ कैन मेंटल हेल्थ सपोर्ट टू बी बेटर स्ट्रक्चर फॉर देम?
यस विपिन जी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, है ना, कि जैसे हमने कहा कि इतना कुछ उनको हैंडल करना पड़ता है, इतनी सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, तो कभी कभी वो मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अब अगर आपने जैसे कहा कि हाउ टू मेक इट मोर इन अ बेटर वे, व्हाट सेटअप कैन बी डन फॉर काउंसलिंग सर्विसेज, आई थिंक 2-3 सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं जो हम कर सकते हैं, और कुछ हम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट जैसे कि एक तो हम जैसे टॉक्स लेक्चर्स थोड़ा करें, वो सिर्फ अवेयरनेस का काम करेगा, है ना, वो अवेयरनेस का काम करेगा कि फैमिलीज़ को ये पता लगे कि ओके ये इश्यूज होते हैं, इन पे हम बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट, एंड जस्ट अवेयरनेस जिसको कहते हैं, है ना। उसके बाद मे बी वी कैन हायर अ काउंसलर, चाहे वो पार्ट टाइम काउंसलर हम हायर करें। और इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, आई मीन सजेशन है, इफ़ वी कैन डू दैट, बट हाँ उसमें सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को कैसे हैंडल करना है, कैसे करना है, वो एक अलग इशू है। कि जैसे इनका मॉड्यूल था, इनका जो मॉडल्स था एनसीईआरटी काउंसलिंग सर्विसेज का और मनोदर्पण का, मैं थोड़ा सा ये आपको बताती हूँ कि मे बी इन फ्यूचर इफ़ पॉसिबल वी कैन अडॉप्ट दैट मॉडल। तो इस पर इन्होंने क्या किया था कि जैसे एनसीईआरटी ने क्या किया, इन्होंने जितनी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या रेप्यूटेड काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हैं उनको अप्रोच किया ऑल ओवर इंडिया। सो उनमें से 100 को उन्होंने उनकी कंसेंट ऑफ कोर्स लिया, तो जिन्होंने कंसेंट दिया है तो 100 लोगों को उन्होंने टीम, रफली 100 लोगों को उन्होंने टीम में इंक्लूड किया। फिर उन्होंने उनकी अवेलेबिलिटी पूछी कि आप कितने से कितने बजे के स्लॉट में आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, है ना, टाइम उनका ले लिया। तो उन्होंने टाइम स्लॉट्स, उनके फ़ोन नंबर्स, पूरा वो बना के डाटा उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। तो लोग कॉल करते थे, है ना, कि उस स्लॉट में इस पर्टिकुलर काउंसलर को उन्होंने कॉल किया, एंड दे यूज्ड टू टॉक, दे यूज्ड टू टेक हेल्प। और मनोदर्पण ने जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का था, उन्होंने कैसे किया कि उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर क्रिएट किया। तो यही सेम जो 100 लोग थे, इनको उन्होंने उसमें जोड़ दिया। तो अगेन टाइम स्लॉट्स के हिसाब से काउंसलिंग के लिए वहाँ पे कॉल जाता था पर्टिकुलर काउंसलर या पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट को। सो अगर वो फ्री है ठीक है, अदरवाइज कॉल गेट ट्रांसफर टू द अदर पर्सन। अब मैं अगर एक चीज़ बताऊँ कि आर्मी के लिए पीपल हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, right, and people actually want to contribute something for the nation, but they don't know what to do, how to approach, where to approach, how to provide their services. So I think ऐसा कुछ अगर मॉडल किया जाए तो बहुत से प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, they will be happily ready to offer their services फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो हम ऑनलाइन कर सकते हैं या कॉल पे कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर के लिए इट्स जस्ट अ सजेशन इफ समथिंग कैन बी डन। मुझे बिल्कुल लगता भी ऐसा, कई बार कई सारे बच्चे हेल्प चाहते भी हैं, लेकिन कई बार कई सारे बच्चों को पता नहीं होता कि हम हेल्प कहाँ से लें। और दूसरी चीज़ है कि देखिए आजकल बाहर बहुत प्राइवेट काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं या साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, लाइक प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट दे आर एक्सपेंसिव, राइट, सो नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। सो आई थिंक उन लोगों के लिए कि जिनका अफोर्डेबिलिटी उतना नहीं है, उनके लिए भी इस तरह के इनिशिएटिव हम कुछ करें, सो इट्स हेल्पफुल। Yes, ma'am, surely. अगर आपके एक्सपीरियंस की बात की जाए, what role do parents play in shaping emotionally strong teenagers? Any advice for them? Yeah, see, parents play a very, very important role as far as the emotional development of the child is concerned, right? लेकिन पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ कि कुछ थोड़ी सी सजेशन, जैसे आपने कहा कि कुछ सजेशंस दीजिए, थोड़ी सी मैं सजेशन देना चाहती हूँ कि क्या करें। सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स को प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट योर सन और डॉटर, शी इज़ एन इंडिविजुअल, she is or he is becoming an adult now, so give them that respect at least, है ना, not respect in that say, but at least respect their opinion, respect their viewpoints, है ना। अब ये सब चीज़ों से क्या होता है कि जब आपका व्यू पॉइंट कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, एटलीस्ट सी वेदर यू एग्री और यू डिसएग्री, दैट इज़ एब्सोल्युटली योर चॉइस, बट एटलीस्ट गिव देम दैट रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, रिस्पेक्ट, लिसन टू देम, राइट, है ना। सो अब क्या होता है जब आप इस तरह से उनको सुन रहे हैं या उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, फैमिली की चीज़ों में डिस्कशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये उनकी इमोशनल देखिए किसी को भी ये चीज़ अच्छी लगती है ना। anyone who gets respect and some kind of acknowledgement, so वो उनका इमोशनली उनको अच्छा तो बनाता ही है ना। एक तो ये चीज़ हो गया, ठीक है जी। सो दूसरा चीज़ क्या हो गया कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं करें, वी कॉल इट हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, कि हेलीकॉप्टर की तरह 24 घंटे बच्चे के सिर पे घूमते रहो, यू शुड अवॉइड इट,
है ना, ठीक है बच्चे को मॉनिटर करना है हमने, बट देयर आर सर्टेन वेज, नॉट एवरी टाइम यू कैन मेक इट सो एविडेंट कि ओ हम तुम पे निगरानी रख रहे हैं, बिकॉज टीनेजर्स गेट रिबेलियस एट दैट एज, दे हैव दैट टेंडेंसी कि अच्छा मेरे पे इतनी नज़र रख रहे हो, दे बिकम रिबेलियस, एंड बीइंग रिबेलियस इज नॉट अ गुड इमोशन, because then it brings lot of other negative emotions with it. Anger भी आएगा, फिर frustration आएगा, है ना, lot of other things will be there. So आप निगरानी रखें, लेकिन इतनी clearly नहीं कि उसको समझ में आ रहा है कि मेरे पे 24 घंटे आप नज़र रख रहे हैं. मी टाइम होना चाहिए. Yes, और parenting के लिए बड़ा important है. See, parenting is what I feel is a combination of firmness and politeness. थोड़ा सा सटल रहिए, थोड़ा फर्म. ऐसा भी नहीं आप इतने स्ट्रिक्ट हो जाएं कि बच्चे के आपने पर्सनालिटी ही बिल्कुल ग्रो ही नहीं होने दिया उसको, या आप इतने लिबरल हो जाएं कि जो करना है आप कीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं. दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. सो बैलेंस हैज़ टू बी क्रिएटेड, है ना. एक ये चीज़ करें. एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए आप ये ज़रूर करें कि बच्चे को थोड़ा सा एक्सेप्ट करें. हमारे साथ क्या होता है, हम अपने बच्चे को ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है. उसका बच्चा अच्छा है, शर्मा जी की बेटी अच्छी है, उसका लड़का अच्छा है, प्लीज़ एक्सेप्ट योर चाइल्ड एज ही और शी इज़, है ना. बिकॉज जहाँ एक्सेप्टेंस आता है वहाँ पर यू फील लव्ड, यू फील ओके मेरी भी जगह है घर में, है ना. सो आई थिंक इमोशनल ग्रोथ के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्ट योर चाइल्ड, देन आपने गाइड करना है, वो देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज टू गाइड, है ना. सो आई थिंक दीज आर फ्यू थिंग्स. एंड येस, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि घर में थोड़ा सा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट रखें. ये भी नहीं हो कि 24 घंटे हम घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है. दे शुड ऑल्सो वर्क ऑन देम सेल्व्स, they should also work on their mental health, their stresses, because even parents are also stressed, right? They have a lot of responsibilities to handle, so they should also work on themselves so that there is a conducive environment at home, because it affects emotional growth of any person. Yeah. और बात की जाए, अगर मैंने भी कई बार ये चीज़ें देखी है, मूवीज़ की अगर बात की जाए, कई सारी मूवीज़ के थ्रू ये मैसेज कई बार दिए भी जाते हैं, तो काफ़ी मतलब मुझे भी ऐसा फील होता है कि कई बार अगर बच्चा बढ़ रहा है उस उम्र पर और घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर भी पड़ता है. बिल्कुल. यस सर. देयर इज स्टिल अ स्टिग्मा अराउंड सीकिंग हेल्प फॉर मेंटल हेल्थ. अगर बात की जाए बच्चों की या फिर बात की जाए किसी भी इंसान की जो कि इस टाइम पर मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, तो कई बार वो एक काउंसलर को अप्रोच करने में हेजिटेट होता है, एम्बैरेस होता है, तो इसके लिए आप क्या करें? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. देखिए स्टिग्मा है, बट फॉर्चुनेटली धीरे धीरे वो स्टिग्मा थोड़ा सा कम हो रहा है, बट येस अभी भी काफ़ी स्टिग्मा है. तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड पहले ये करते हैं कि कब काउंसलर के पास जाना है, क्योंकि ये क्लैरिटी जब होगी तो शायद लोगों में थोड़ा स्टिग्मा कम होगा, है ना. अब नॉर्मली हम सब लोग की लाइफ में स्ट्रेस आता है, रूटीन में, है ना, कुछ ना कुछ होता है. हम सब सैड भी होते हैं, हम सब रो भी पड़ते हैं कभी कभी, एंड दैट इज़ नॉर्मल, है ना. ह्यूमन इमोशंस हैं एंड दैट इज़ नॉर्मल कि हाँ 3 दिन 4 दिन हम थोड़ा परेशान हुए, उदास हुए, रो लिए, एंड देन वी मूव ऑन. सो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. बट अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स जो आपको 2 वीक्स से ज़्यादा एक्सटेंड हो रहे हैं, देन यू नीड दैट हेल्प. तो वो क्या आपकी सिम्टम्स हैं, थोड़ा सा जस्ट रफली मैं आपको बताती हूँ. उनमें से कुछ 3-4 सिम्टम्स आप फील कर रहे हैं, जैसे बार बार रोना आ रहा है, आप बार बार रो रहे हैं, आप बार बार आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, और आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, आपका फोकस नहीं हो रहा है चीज़ों पे, आप अगर जो भी काम कर रहे हैं उसमें अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, है ना, और बात बात में आपको गुस्सा आ रहा है, आप बार बात पे इरिटेट हो रहे हैं, या तो आप खाना नहीं खा रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जंक ज़्यादा खा रहे हैं, सो नहीं रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, है ना, या फिर आप मतलब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा देख रहे हैं कि आप फ़ोन से नज़र ही नहीं उठा पा रहे हैं, राइट. सो ऐसी कुछ भी चीज़ें, या मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आप लोगों से मिलना नहीं चाह रहे हो, आप बिल्कुल आइसोलेट हो रहे हो, लोगों के कॉल्स नहीं आप उठा रहे हो, आपको मैसेजेस नहीं मन कर रहा है किसी का करने का, है ना, और हर वक्त आप लोनली फील कर रहे हो, यू फील लाइक क्राइंग. तो ऐसे कुछ भी इस तरह के इमोशंस आपको फील होते हैं, एंड आपको लगता है कि ये इट्स मोर देन 2 वीक्स, देन यू शुड एक्चुअली सीक हेल्प. वाई? सी देखिए होता क्या है ना कि बिगनिंग में, अगेन जैसे हमने बात किया था फर्स्ट एड का, है ना, तो अगर आप बिगनिंग में ही चले जाते हैं बात करने के लिए, तो वो बिगनिंग में इनिशियल स्टेज पे ही एड्रेस हो जाएंगे. बट अगर आपने उसको छोड़ दिया ऐसे ही, सो इट विल लीड टू देन मे बी सीवियर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लॉट ऑफ मेंटल इलनेसेस, मेंटल हेल्थ, अगर इतना सीवियर चीज़ें भी हैं, सो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो इसको ऐसे करके समझने की ज़रूरत है, आई थिंक, कि आपको जब आपको फीवर हुआ, खांसी जुकाम हुआ, आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास, एकदम से जाते हैं,
क्यों? क्योंकि आपको यू डोंट लाइक दैट सिचुएशन, यू डोंट लाइक बीइंग इन दैट सिचुएशन, यू वांट टू फील बेटर, राइट? तो सेम तरीके से इसको सोचना है कि प्लीज़ अप्रोच करें. ऐसा नहीं है कि काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट आपको कहेंगे कि आप में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं. इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, वी ऑल गो थ्रू दिस, है ना? और आपको कोई मेडिसिन नहीं देंगे वो. इट इज़ लाइक टॉकिंग टू अ प्रोफेशनल फ्रेंड, है ना? बट हाँ, अगर एक्सीड हो गया, आपने इतना ख़राब कर दिया, देन it might lead to medication and those kind of things. So I think ये awareness थोड़ा सा हम फैलाएं so that people don't feel hesitant. काफी जरूरी मैसेज ये आपने दिया मैम, क्योंकि मुझे लगता है कई सारे लोग इस टाइम पर डिप्रेशन से जूझ भी रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि आखिर हमें हो क्या रहा है. बिल्कुल. लास्ट में आपसे मैम मैं यही जानना चाहूंगा, इस टाइम पर हमें कई सारे लोग देख रहे हैं, कई सारे लोग इस टाइम पर हमें सुन भी रहे हैं, तो उनके लिए एक ऐसा मैसेज दीजिए जो मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को इस टाइम पर जरूरत है, जो कि इस टाइम पर मेंटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ग्लिच आ रहा है, कहीं ना कहीं. ट्रू. देखिए, एक चीज़ कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से, कि यू डोंट नीड टू सफ़र अलोन. You don't deserve that. Please come out of it. है ना? You deserve to be happy. You deserve to be successful in life because you have so much of potential. है ना? बस थोड़ा सा effort करो, थोड़ा सा आके बस बात करो. Come out of it. And things are so simple actually. Life is so beautiful. God has stored so much for you in future. So मेरी अपनी लिखी हुई 4 लाइनें हैं, वो मैं कहकर वो करना चाहती हूँ. I'll just read it out in case. Yeah. आसमां ना भी छू पाए तो क्या, एक उड़ान भरने का हौसला रखते हैं. रुकने की फितरत नहीं, चलने का जज्बा साथ रखते हैं. चुनौतियां आएंगी डगर में बहुत, उन्हें झेलने की कुव्वत रखते हैं. इबारत लिखनी है कामयाबी की, चलो आज एक नई बुनियाद रखते हैं. क्या बात है. So, बहुत बहुत शुक्रिया सब लिसनर्स को और विपिन जी आपको और आपके चैनल को. A lot of thanks and my best wishes to everyone and remember you are not alone, we are with you. Thank you. थैंक यू सो मच. आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया, और आज हमारे साथ डॉक्टर नीरू अत्री जी थी, और आज हमने कई सारी जरूरी और इंटरेस्टिंग बातें की, और मुझे लगता है कि आज का शो आप सभी को पसंद भी आया होगा. लेकिन अभी मुझे चाहिए आप सबसे इजाजत, क्योंकि बहुत ही जल्द एक नए शो में आपको मिलने वाला हूँ. तब तक के लिए सुनते रहेगा वॉइस ऑफ किन्नौर.